ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So now in this chapter what we are going to do, we are going to analyze or learn the use of technique of firstly ਕੀ techniques ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ use ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ triangular law of ਇੱਥੇ triangle law of vector addition. Second one is parallelogram law. ठीक है। सो इन्हां दोवां तो आप स्टार्ट करांगे। आप स्टार्ट करते हैं सब तो पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दे नाल। सो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆ ਦੂਜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੀਨ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਅਗੇਨ ਏ ਵੈਕਟਰ, b vectors are two vectors, then their resultant can be described by this third line of a triangle. अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ, that will lead to our resultant vector. ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਡ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ if two vectors acting on a particular or on a particle at a same time are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in one order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in the opposite order. ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ opposite order ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ we want to find its magnitude
प्लस इट्स डायरेक्शन, क्योंकि आ वैक्टर भी है। सो आपां मैगनीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों नूं ही लभना आ। वी आर टू फाइंड आउट द मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वैक्टर। बहुत ईजी, ठीक है। हुण किद्दां फाइंड आउट करांगे, थोड़ा जिहा दिमाग लड़ाउणा है, एनालिटिकली लिखना है। तुसीं किद्दां लिखोगे, वी कैन राइट लेट देयर आर टू वैक्टर, लेट अस सपोज देयर आर टू वैक्टर्स। किद्दां ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। फर्स्टली आपां दोबारा बना लैंदे वड्डी सारी डायग्राम, ईजी हो जू। ए वैक्टर हो गया, बी वैक्टर जिहड़ा है अपने कोल बिल्कुल आही वैक्टर, इहनूं असीं मेरा हथ जिहड़ा बी वैक्टर तुसीं ऐ बना लो, ठीक है। आ बी वैक्टर बन गया। अगेन ऐ करो, दोबारा बना लो इत्थे। सो वी विल राइट सारा ही मिटे देने आपां। हुण ख्याल करो, वड्डी सारी डायग्राम बनाने हैं। सब तो पहला तो असी एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ए वैक्टर, फिर बी वैक्टर, अगेन उससे किसी एंगल थी बन गया। हुण ये मान लो भी ये स्ट्रेट आ, ठीक है। सो थोड़ा जिहा आपां इहनूं स्ट्रेट कर लेंगे, ओवर राइट कर लेंगे चीज़। सो आ मेरे को ए वैक्टर हो गया, दिस इज अवर बी वैक्टर। नाउ आ मेरे को कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ठीक है। इनू मान लो ओ हो गया, ए पॉइंट मान लो पी हो गया, जिथे पहला वैक्टर खत्म होंदा। उपर वाला जिहड़ा पॉइंट आ उन्होंने मान लो क्यू हो गया। नाउ वी आर टू फाइंड द रिजल्टेंट वैक्टर। हुण की है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, दिस रिजल्टेंट वैक्टर आर, ठीक है। अपने कोल इफ द ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर represented by two sides of a triangle, then resultant vector can be represented by the third side in the opposite order. So order तो चलो आपा ठीक है। So सब तो पहला तो आपा एक चीज़ डिसाइड कर लेने हैं कि आ अपने कोल जिहड़ा एंगल है इनू तुसी मान लो फाई मान लो, बीटा मान लो, चलो बीटा लिख लेने। सो ये आपा एक एंगल मान लिया, क्यों? क्योंकि ये बीटा डायरेक्शन की दसदा, आर वैक्टर है, जिहड़ी इहदी लेंथ होगी दैट विल बी इट्स मैगनीट्यूड। सो मैगनीट्यूड तो आप ऐ लिख लाँगे मॉड पा के। सो जिहड़ा इहदा एंगल होगा, डायरेक्शन होगी, वो अपने कोल एंगल बीटा तो दर्शाई जाऊगी। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय इन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ बीटा, आइदर साइन, टैन, कॉस, कुछ भी आप टैन ले लेने होंगे नॉर्मली, ठीक है। टेंजेंट बीटा यूज करते होंगे। सो फॉर डायरेक्शन वी विल कैलकुलेट फॉर डायरेक्शन व्हाट इज टेंजेंट बीटा। सो साडा पहला काम किया आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। मेरे ख्याल नाल आपां स्टार्ट करिए हुण, ठीक है। नाउ इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तुसीं जिहड़े हले तक 10th तक पढ़ते रहे हैं वो वाले रूल्स यूज करके देखो भी आपां किद्दां फाइंड आउट कर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपां ला के इहनूं यूज करांगे। सो सब तो पहला तां आ चीज़ जिहड़ी एंगल बनी है, थोड़ा जिहा होर इहदी साफ डायग्राम बना लईए आपां। तुसीं इसे डायग्राम दे विच ही बना लिओ, मैं समझाउण दे लई तुहानूं एक वक्री डायग्राम बनाउण दी कोशिश कर रहा। सो अगेन आपां पहलां बना लिया ए वैक्टर, ठीक है। सो आ मेरे कोल थोड़ा जिहा मैं ली डाउन कर लिया है, बी वैक्टर हो गया। सो आपां लाइनां ही मार लैने, वैक्टर नहीं बनाउंदे। सो आपां आ वाली चीज़ फाइंड आउट करनी, दिस इज आर वैल्यू, आ अपनी आर दी वैल्यू आ, ठीक है। सो इहदे लई की करदे आ, इहदे लई सौखा तरीका यह है भी इहनूं थोड़ा जिहा एक्सट्रापोलेट कर लो, एक एक्सट्रापोलेट कर लो, लाइन बना लो, बना ली। इहदे तो थल्ले तुसीं परपेंडिकुलर सुट दो, ठीक है जी। सो हुण देखो अगेन वही नंबर दे दो, ओ क्यू पी, जिहड़ी आ वाला पॉइंट बनता इंटरसैक्शन का इनू एन दे लो, ठीक है। सो हुण ध्यान नाल देखिए आपां की बनता है, इहदा मैगनीट्यूड, हुण कल्ला मैगनीट्यूड लिख रहे हैं, तो वैक्टर सी ना। सो इहदा मैगनीट्यूड कितना अपने कोल, आपां इहनूं सिंपली ए लिख लैंदे आ। इहदा मैगनीट्यूड बी हो गया, इहदा मैगनीट्यूड जिहड़ा आ आर हो गया,
ठीक है। सो आह एंगल आप बीटा मन्निया होया सी ते ये एंगल मान लो थीटा ले लो, हुण आपां मेन एंगल थीटा इहनूं ले लैंदे, ठीक है। सो हुण तुसीं मैनूं एक गल दसो, प्रॉब्लम सौखी होगी किद्दां? आपां की करांगे, आपां आर दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपां नूं आह वाली इक्वेशन आह वाली लाइन दी लेंथ पता आ टोटल लेंथ पता, टोटल लेंथ, दैन की हो जाएगा अपने को आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लाइन द स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर, ठीक है। सो मैं तुहानूं इहदा बेसिक समझा दिता। सो कापी पेन तुहाडे हत्थ विच होना जरूरी हैगा ते नाल दी नाल मेरे नाल सॉल्व करो। हुण इहदे विच कुछ होर नहीं है, आपां 8-9 मिनट ऑलरेडी लैक्चर ते लगा चुके हैं इन्नी गल ते। हुण ये वाला काम जिहड़ा मेन काम है इहदे ते 2 मिनट तो वध नहीं आपां नूं लगने, ठीक है। सो मैगनीट्यूड आपां बना ले, चलो जी करो स्टार्ट। फिर हुण अपने कोल आपां नूं की चाहीदी है, एक तां वैल्यू चाहीदी है क्यू एन दी, ठीक है जी, ये फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू चाहिए है सानू ओ एन दी। हुण ओ एन मेरे कोल की है, ओ एन विल बी इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। हुण ओ पी मेरे कोल की है ए, सो इन शॉर्ट मैनू ए प्लस इत्थे जिहड़ी वैल्यू आनी है पी एन दी वो चाहिए है। सो एक मैनू चाहिए है वैल्यू क्यू एन दी टैक्नीकली, एक पी एन दी वैल्यू टैक्नीकली चाहिए है, कढ़नी पैनी। सो उहनूं आपां किद्दां कढ सकदे हां, उहदे लई असीं की यूज़ करांगे, आपां इदां लिखांगे फ्रॉम ट्रायंगल की पी क्यू एन, दिस ट्रायंगल पी क्यू एन, वट विल बी देयर, बी अपने कोल है, सो cos थीटा लिख लो पहला, cos थीटा विल बी इक्वल टू वट, cos की हुंदा अपने कोल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आधार बटा करण। सो पी एन बाय पी क्यू, सो पी एन की वैल्यू आप कट सकते हैं, की आ जूगी इथों, पी एन विल बी इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू की वैल्यू अपने कोल की है, पी क्यू इज इक्वल टू अपने कोल पी हैगा बी, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू बी, सो दिस वैल्यू कम्स बी कॉस थीटा। इदां ही सिमिलरली इत्थे असीं हुण साइन थीटा करांगे। साइन थीटा की हुंदा अपने कोल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर कितना है अपने कोल किहड़ा है क्यू एन बाय पी क्यू। सो अगेन क्यू एन की वैल्यू की आ जाएगी अपने को, क्यू एन विल बी इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, what it means b sin थीटा। इस चीज़ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हुण, ठीक है। सो असी आ वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, आ भी फाइंड आउट कर ली, ये अपने को आ गई जी b sin थीटा, ये आ गई अपने को b cos थीटा। सो हुण असी क्यू एन की वैल्यू लिख लीए इत्थे b sin थीटा, पी एन की वैल्यू की आई सी बी कॉस थीटा, सो अपने को ओ एन की वैल्यू की हो जूगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। सो हुण पाइथागोरस थ्योरम अपने कोल की लिखांगे आपां, सो नैक्सट स्टैप इन ट्रायंगल, इदां लिख लो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ठीक है, अप्लाइंग Pythagoras theorem, what we will get, Pythagoras the step की होगा, इथे लिख लिए थोड़ा जा, की होगा Pythagoras the step, it will be OQ square is equal to QN square plus
ON स्क्वायर। ठीक है, सो OQ की वैल्यू अपने को R है, R के स्क्वायर की वैल्यू काहदे बराबर होगी, ए वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज आप कढ़ लिया, इन्हों फिल कर दो। ठीक है, ईजी है, ट्राई करो। चलो लिखो कापी ते। लिखो QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। सो QN स्क्वायर की वैल्यू की सी अपने को, QN की सी उपरों थले नूं, ये अपने को आया सी B sin थीटा। ठीक है, सो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ON की वैल्यू की सी इकट्ठा कि A प्लस B cos थीटा सारे दा स्क्वायर। ठीक है, सो इनू खोल दो ब्रैकेट नू, किदां करांगे, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इत्थे की आ जाएगा अपने को A प्लस B का फॉर्मूला ला दो, A प्लस B स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है जी, सो हुण इहदे विच देखो की कीता जा सकता है, ए स्क्वायर नूं आपां इदां ही लिख लिया कल्ला आ। हुण देखो B स्क्वायर साइन थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन कढ़ लिया, अपने कोल की रह जाऊगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा। सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सो व्हाट वी विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। एक आधी वैल्यू आ गई OQ स्क्वायर दी, मीनस R स्क्वायर दी, OQ की वैल्यू R भरती। सो R की वैल्यू की आ जाएगी, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है जी, 2AB cos थीटा। हुण इहदा मतलब की है, cos थीटा की सीगा अपने कोल, जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेने आपां। ठीक है, सो OQNP, चलो आ थीटा सी। सो आ मेरे को ए वैक्टर सीगा, आ मेरे को बी वैक्टर सी। सो ए ते बी वैक्टर दे विच जिहड़ा एंगल आ, अगर तुहानूं सम दे विच दिता होया थीटा, तो वो थीटा ए दा मैगनीट्यूड ते बी दा मैगनीट्यूड यूज़ करके इस फार्मूले दे विच तुसीं फिल कर देना। वी विल गेट व्हाट, द मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर, होली सोली द मैगनीट्यूड। ठीक है, हुण जिहड़ा नैक्सट असीं काम करना हैगा, वो असीं करना हैगा डायरैक्शन दे उत्ते। ठीक है जी, नैक्सट है अपना डायरैक्शन, डायरैक्शन ऑफ आर वैक्टर। सो डायरैक्शन दे लई आपां नूं की करना पैना सी, मैं तुहानूं कहा सी आ ए वैक्टर है, आ बी वैक्टर है। ठीक है, सो आ अपने कोल बीटा, बीटा एंगल सीगा। सो ओ क्यू पी, अगेन 3 बार आप डायग्राम बना ली, तुसीं पक्की रख लेनी। ठीक है जी, इहदे विच हुण देखो इत्थे अपने कोल एन सीगा सुट्टिया आपां परपेंडिकुलर। सो आपां नूं ON दी वैल्यू भी पता है, QN दी वैल्यू भी पता है। सो मैं तुहानूं डायरैक्शन दे लई की दस्सिया सी, डायरैक्शन दे लई असीं टेंजेंट लवांगे इस एंगल दा, जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर ए वैक्टर दे नाल एंगल बना रहा उहदा आपां टेंजेंट ले लेना, टैन ले लेना। सो टैन बीटा इज इक्वल टू कादे बराबर आ, जो टैन की हुंदा, हाइट बाय बेस, दैट इज QN बाय ON। सो QN मेरे कोल की सीगा, ए वैक्टर बी वैक्टर है ना, ए आर सीगा। सो QN की सी मेरे कोल B
मैनू याद है, तुहानू याद है कि नहीं, बी साइन थीटा। सो ओ एन की सीगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। सो तुसी जे तुहानू डायरैक्शन कड्ढण नू कही जाती है, तुसी टैन बीटा की वैल्यू कढ़ देनी है, दैट विल बी इक्वल टू दिस फार्मूला। सो ये सीगा अपना ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन। ठीक है। नैक्सट हुण आपां करन जा रहे हैगे आ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा आपां की समझिया सी उस वेले डेफिनेशन च, इफ देयर आर टू वैक्टर्स, ठीक है, किसी एंगल ते ही होणगे, मान लो भी दो जिहड़े वैक्टर आ थीटा एंगल ते ने, अगर वो वैक्टर किसी पैरेललोग्राम दे एक पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स जिहड़ियां दो मेन साइड्स हुंदियां उन्हां दे नाल रिप्रजेंट कीते जा सकदे होण, इट मीनस कि वन दिस साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रजेंटेड बाय वन वैक्टर and this other side can be represented by the second vector, then the resultant of these two vectors can be represented by this diagonal vector, जिहड़ा diagonal vector होगा। ठीक है। बट इहदा ऑर्डर जिहड़ा आ वो ऑर्डर बाहर नूं ही निकलदा होगा, क्योंकि ये भी इधर नूं बाहर नूं ये भी इधर नूं उसे ऑर्डर च सेम ऑर्डर च चला गया। ठीक है। सो देखा जाए आह डायग्राम तुसीं समझ ली, देखा जाए तो यह अपने को ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन के नाल ही जाके मिल जाना है। सो कन्फ्यूज नहीं होना इहदे विच। जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो तुसी लिख सकते हो। स्टेटमेंट इज, आई रिपीट, इट स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, comma, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point। ठीक है। सो हुण आपां इहदा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस दे विच बेटा की होगा, इत्थों ही तुहानूं सारी समझ आ जानी है। लेट अस सपोज कि आ अपने कोल ए वैक्टर है, आ बी वैक्टर है, मैं पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स दे उत्ते रखता, ते जिहड़ा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सॉरी दिस लॉ अपने कोल की है, जिहड़ा डायगोनल वैक्टर है दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दी रिजल्टेंट वैक्टर। ठीक है। सो बस आपां की करना, आपां इहदी वैल्यू इहदा मैग्नीट्यूड ते इहदी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है। जां इहनूं सिंपली आर लिख लैंदे आ। दूजा इहदा जिहड़ी डायरेक्शन किद्दां होगी, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद द ए वैक्टर। सो इहनूं आपां बीटा लिख लैंदे। हुण देखो दिस इज ए पैरेललोग्राम, बनाउण च मेरे तो थोड़ी जी विंगी होगी, बट दिस इज ए पैरेललोग्राम। वट इट मीनस कि जिहड़ा इस साइड दा अपने कोल दिस साइड इट इज इक्वल टू दिस साइड इन मैग्नीट्यूड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन मैग्नीट्यूड आ वैक्टर उत्ते। ठीक है। सो जे ध्यान नाल देखिया जावे तुहाडे लई होर सौखा हो जाऊगा। आपां इहनूं लिख लैंदे आ पॉइंट नूं, इहनूं ओ लै लो, ठीक है, इनू क्यू लै लो, उदा ही इनू पी लै लो, इनू एस लै लो। चलो सो जे ध्यान नाल देखिया जाए तो अगर आप इस साइड नू ना देखिए तो अपने को ट्रायंगल लॉ वाली एडिशन ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन वाली डायग्राम बन गई। सो अपने लिए प्रूव करना कितना औखा हो गया, कुछ भी नहीं, बहुत सौखा हो गया। वी हैव दिस ट्रायंगल। ठीक है। सो इस ट्रायंगल तो आप फाइंड आउट करना है कि आर की वैल्यू, उहदे लई असीं की करांगे, इहनूं एक्सट्रापोलेट कर लिया। ठीक है। तो एक्सट्रापोलेट करके क्यू तो इत्थे परपेंडिकुलर सुट दिता, दैन वी विल फाइंड दिस पॉइंट एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय एन। सो दिस इज ए परपेंडिकुलर। सो नाउ वी कैन यूज फर्स्टली दिस triangle, which triangle PQN, and after this we will use for a measurement of R we will use triangle OQN। सो सारी चीज़ बिल्कुल उवें ही करनी है बेटा, ये विच कुछ भी नहीं रह जाता। तुसी लिख सकते हो, जे लिखना है तो इदा लिख लो भी, हैडिंग बना के लिख लो। चलो भी मैग्नीट्यूड फर्स्टली की करते हैं आप, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं,
डायग्राम तुहानूं समझ आ गई। हुण आपां 2 मिनट ला के वैल्यू कढ़ दईए। मैगनीट्यूड ऑफ आर वैक्टर, ठीक है, किद्दां फाइंड आउट करांगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लिख लो तुसीं इत्थे वी ड्रा QN परपेंडिकुलर ऑन दी लाइन, ठीक है, एंड दैन एक्सट्रापोलेट दी लाइन OP टू N। सीधी जी गल है। इस तो बाद असीं की करांगे? सो हुण अपने कोल की आ गया, OP दी वैल्यू अपने कोल की है, सिर्फ मैगनीट्यूड लिख रहे हैं आप। OP दी वैल्यू हैगी है A, OS दी वैल्यू हैगी है अपने कोल B, ठीक है। हुण OS जिहड़ा है अपने कोल वो PQ दे बराबर है, सो इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू PQ, ठीक है जी। उपर आपां नूं जाण दी लोड़ ही नहीं पैनी क्योंकि अपना इत्थे ही सर जाना। सो अगेन जे आपां देखिया जावे तो जिहड़ा आ एंगल बनदा है A ते B दे विच थीटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दी दिस एंगल, ठीक है। सो ये एंगल भी अपने कोल बन गया। आप इदां लिख सकते हैं, तुसीं लिख लो एंगल SOP इज इक्वल टू एंगल QPN, ठीक है, विच इज़ थीटा। मोर एक्यूरेसी हो जूगी। सो हुण तुसीं स्टार्ट कर लो सीधा। तुसीं पहलां आह ट्रायंगल चक्को, पहली PQN, ठीक है, P तो ही स्टार्ट कर लो। चलो उपरों स्टार्ट करना, उपरों कर लो। PQN लिख लो। इन ट्रायंगल PQN व्हाट वी हैव वही वैल्यू फाइंड आउट करांगे QN दी ते PN दी। सो पहला तां साइन थीटा ला लो, पहला कॉस थीटा ला लो। कॉस थीटा की हुंदा बेटा अपने कोल? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज PN बाय PQ। सो वी विल फाइंड PN दी वैल्यू की आ जूगी अपने कोल PQ cos थीटा, ठीक है, दैट इज PQ दी वैल्यू अपने कोल की हैगी है B दे बराबर है। सो वी विल हैव इट लाइक B cos थीटा। इदां ही अपने कोल साइन थीटा दी वैल्यू फाइंड कर लो। अगेन हुण सारे स्टैप रिपीट होणगे जिहड़े आपां ट्रायंगल लॉ वेले कीते सी, ठीक है। सो इहदे च की आ जूगा साइन थीटा की हुंदा आ हाइट बाय, ठीक, हाइपोटेन्यूज की हो जूगा हाइट की अपने कोल QN। सो QN बाय PQ, अगेन QN दी वैल्यू की आ जूगी, दिस इज QN, PQ साइन थीटा, दैट इज B साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। दो चीज़ां हो गईयां। चलो हुण की है? हुण अपने कोल ओही ON दी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ON की हो जूगा अपने कोल? देन लिख के करना, देन ON विल बी इक्वल टू OP प्लस PN, ठीक है जी। मीन ये अपने कोल हो जू A प्लस B cos थीटा, डन। सो अपने कोल हुण ए वाली वैल्यू हैगी है, अगेन आ वाली वैल्यू भी हैगी है। सो आपां पाइथागोरस थ्योरम ला के इन ट्रायंगल QON दे विच जां OQN दे विच असीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम तुसीं अपनी कॉपी ते बना लेनी है। सो आपां इत्थे बना लैने, मैं की करदा इन ट्रायंगल OQN। सो इहदे विच मेरे कोल की हो जूगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर की बन गया मेरे को सॉरी, सो ON दी वैल्यू की सी अपने कोल? ON दी वैल्यू आप कड्ढी सी A प्लस B cos थीटा सारे दा स्क्वायर। NQ दी वैल्यू की सी B साइन थीटा स्क्वायर। सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। OQ दी वैल्यू की है अपने कोल R स्क्वायर। सो ही सारा कुछ हो जूगा। फार्मूला खोल दो, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So next step again
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। सो अपने कोल की आ गया ए स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर थीटा सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta will be equal to r square. Then the magnitude of r can be written as finally square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So ये अपने कोल रिजल्टेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड आ गया। बिल्कुल सेम हो गया ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वांगू। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਿਪੀਟਡ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ tan ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। डायरेक्शन लिख के देन लिख लियो डायरेक्शन ऑफ आर। सो tan बीटा विल बी इक्वल टू tan बीटा की हुंदा अपने कोल हाइट बाय बेस। सो हाइट मेरे कोल की सी एन क्यू स्क्वायर एन क्यू बाय बेस सीगा अपने कोल ओ एन। सो ये की सीगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। सो डायरेक्शन भी कढ़ ली आपां ते मैग्नीट्यूड भी। सो हुण आपां हले तक इस लैक्चर च की कुछ कवर कर लिया, अज नहीं करांगे। असी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां जिहड़ियां कवर अप कीतियां। फर्स्ट इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सैकेंड इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नाल ही इहदे आपां एक टॉपिक कंप्लीट करके इहदे न्यूमेरिकल्स करांगे। न्यूमेरिकल्स तो बाद आपां नूं समझ आ जाऊगा सारा की है। सो इस चीज़ को रिवाइज करना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर च भी पा देंदे हुंदे आ, प्रूव करना भी पेपर च पा देंदे आ। नॉर्मली तो इहदे बेस दे उत्ते अपने कोल न्यूमेरिकल आउंदे ने एग्जाम दे विच, बट कदे ये डायरैक्ट भी पा देंदे आ स्टेट एंड प्रूफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्टेट एंड प्रूफ। प्रूव नहीं आउंदा हुंदा एक्चुअली इहदा हुंदा स्टेट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग इट। ठीक है, इदां पाउंदे आ, प्रूव नहीं आंदा हुंदा कदे भी। सो आपां इन्ना ही करते हैं इस लैक्चर लिए, नैक्सट लैक्चर च मिलते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।